Hello everyone, welcome to Manual Education. So basically this session is for the MBA entrance examination. In this session we will discuss about the general awareness and current affairs regarding the MBA entrance examination. There are various MBA entrance examination in which GK and current affairs are in syllabus. So we will discuss each and every factors, every important current affairs regarding these examinations. We have already discussed the part थर्ड ऑफ दिस सेशन, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2, 3 ये जो है डिस्कस हम कर चुके हैं. दिस इज द पार्ट 4 ऑफ दिस सेशन इन विच वी इंक्लूड 16 जून टू 22 जून करंट अफेयर और उसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हम लोग कवर करेंगे, विच विल कवर द एग्जामिनेशन लाइक सीयूईटी, टिस, जैट, MICAT, CMAT, MAT, अदर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सारे को कवर करेगा. ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप लोग आराम से देखिएगा और रेगुलरली जो है वीकली सेशन ही आता है, हर वीक जो है इसको जरूर जो है देखा कीजिए ताकि आपका जो है प्रिपरेशन अच्छा हो सके. दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन. So these are our social media platform. You can join here for daily contents. You can join the Telegram or WhatsApp. Here you will get the PDF of the session. यहाँ पे जो है PDF और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा. For important updates, you can join Instagram, Facebook. You can subscribe our YouTube channel. Here you will get the daily update as well as the important information as well as the various जो है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगा. तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिंक भी आपको दे दिया जाएगा इन द कमेंट सेक्शन और वहां से जो है जाकर आप डिफरेंट साइट से हमारे जुड़ सकते हैं. सो यू कैन ज्वाइन here. So if you are preparing for MBA entrance examination, you can join our offline and online coaching program. So here is the coaching Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali. You can join, that is the offline center, and in online you can call on this number and the counselor will guide you through. So this is the self-study program for the MBA entrance examination. So let's start this session and the first question is, which company has become the world's most valuable company? This is very very important question. This is related to business GK और आपको business GK से जो important question हो सकता है, जैसे questions आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वैसे ही question यहाँ पर include किया गया है. So which company has become the world's most valuable company? Like Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet. And the correct answer is Microsoft. So Microsoft has recently become the world's most valuable company. So Microsoft जो है सबसे वैल्यूएबल कंपनी हो चुकी है अभी वर्ल्ड की, विद मार्केट कैप वैल्यू कितना हो चुका है, दैट इज $3.1 ट्रिलियन जो है इसका मार्केट कैप वैल्यू हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट का. माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं. सो सम स्टैटिक पोर्शन अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज फाउंडर इज बिल गेट्स एंड पॉल एलन. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. राइट नाउ द करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है, दैट इज सत्य नडेला इज द करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. सो दीज आर the important static portion from this first question. Now move on to next question. Who has been appointed as the brand ambassador for tobacco control? So tobacco control के लिए जो है brand ambassador किनको बनाया गया है, tobacco को कैसे प्रोहिबिट किया जाए, उसके यूज को कैसे रोका जाए. So उसके लिए जो है अवेयरनेस से फैलाने के लिए, अवेयरनेस कैंपेन के लिए, so somebody has been appointed as the brand ambassador and who is he or she? नीरज चोपड़ा, कैटरीना कैफ, युवराज सिंह, पीवी सिंधु. And the correct answer is पीवी सिंधु. So an event was organized by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India to celebrate World No Tobacco Day. और World No Tobacco Day हम लोग कब celebrate करते हैं? We celebrate World No Tobacco Day on 31st of May. And PV Sindhu, the badminton star, has been appointed as the brand ambassador of tobacco control to create the awareness among the people regarding the use of the tobacco and regarding its very harmful जो इसका effect होता है उसके बारे में awareness के लिए इनको brand ambassador appoint किया गया है. Now move on to next question. Which country has been blacklisted by the United Nations? Important question है, बहुत important है. United Nations ने किस कंट्री को blacklist किया है? Israel, Palestine, Maldives, Spain. And the correct answer is Israel. So Israel has been blacklisted by the UN over allegation of human right violation amid attacks in Gaza. तो यहाँ पर genocide का केस भी इस पे किया गया था. Genocide का केस किसने किया था? That is South Africa against the Israel International Court of Justice. और इजराइल को जो है यूएन ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है ड्यू टू इजराइल हमास वॉर व्हिच वाज स्टार्टेड ऑन October 7, 2023. और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं. नियरली 37,000 पीपल वर किल्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. और इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, दैट इज ऑपरेशन अजय इज कंडक्टेड इज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग द इंडियंस फ्रॉम द इजराइल. इस तरह से कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, वॉर का सिचुएशन आ जाता है या कोई क्लाइमेटी का सिचुएशन आ जाता है
तो इंडिया जो है अपने जो भी वहां पे सिटीजन है उसको निकालती है और वो उसके लिए कुछ ऑपरेशन का नाम दे दिया जाता है। सो ऑपरेशन अजय इज टू इवैक्यूएट द इंडियंस फ्रॉम द इजराइल, लाइक ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट द इंडियंस फ्रॉम द यूक्रेन, ऑपरेशन देवी शक्ति टू इवैक्यूएट द इंडियंस फ्रॉम द अफगानिस्तान। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया है अगेंस्ट जो है जो भी वॉर वगैरह सिचुएशन होता है उसमें। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द आर्चरी एशिया कप 2024 फेज 3? सो फेज 3 था ये आर्चरी एशिया कप, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में ये कितना मेडल इंडिया ने जीता है? 1, 2, 5, 3 एंड द करेक्ट आंसर इज 5. So the 2024 Archery Asia Cup Stage 3 was held in the South Korea city of Suwon from 4 to 9 June 2024 और इंडिया जो है इसमें टोटल जो मेडल जीता है that is 5 मेडल won by India. 1 is gold, 2 silver and 2 bronze. So total 5 medals won by India in Archery Asia Cup 2024 which were held in South Korea. The capital of South Korea is Seoul. Now move on to next question. Who has been awarded the EY World Entrepreneur of the Year Award 2024? This is very important question. ये क्यों important है आगे भी देखेंगे। EY World Entrepreneur of the Year Award 2024 Ernst & Young World Entrepreneur Award किसको दिया गया इस बार 2024 का? विलायन सुबैया, सिद्धलिंगा पटनसेट्टी, रस्किन बॉन्ड, पवन सिंधी and the correct answer is विलायन सुबैया. So Indian entrepreneur Vilayan Subbiah has been awarded the EY Entrepreneur of the Year Award 2024. And Vilayan Subbiah has become the 4th Indian to win this award. So he is the 4th Indian to win this award. There are 3 Indians already won that award. Now move on to next question. Who has become the first Indian to win a fight in the Ultimate Fighting Championship? This is very important. कोई भी चीज अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंडिया वगैरह का जो है इसमें नाम नहीं है। इसमें इंडिया क्रिकेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट हॉकी वगैरह में देख सकते हैं, बट इन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन दैट इज UFC और फर्स्ट इंडियन टू विन द फाइट इन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन UFC. बिल्किस मीर, मरियम नवाज, सुमन कुमारी, पूजा तोमर एंड द करेक्ट आंसर इज पूजा तोमर. सो द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC वाज हेल्ड इन लुइसविल USA में ये कंडक्ट किया गया था एंड पूजा तोमर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द फाइट इन UFC and she has defeated, इन्होंने किसको हराया? She has defeated the Rayan dos Santos from the Brazil. ये ब्राजील की हैं रयान दोस सैंतोस, उनको जो है इन्होंने डिफीट किया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम याद रखिएगा और ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं ये भी याद रखिएगा. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. NCLT has approved the merger of India and which of the Air India and which of the following aircraft. तो किसका मर्जर को NCLT ने अप्रूवल दे दिया है? कौन सी एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया के साथ? विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयर एंड द करेक्ट आंसर इज विस्तारा. So the National Company Law Tribunal has approved the merger of Air India and Vistara. तो इन दोनों का मर्जर जो है इन्होंने अप्रूव कर दिया है. The merger has resulted in the creation of one of the world's largest airline group. इसके बाद जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरलाइन ग्रुप जो है ये बन जाएगा. NCLT की बात करते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन June 1st, 2016. Air India that was established before the independence in 1946, earlier held by Tata. फिर उसको गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर लिया था. Now again Tata has bought the Air India. अभी जो करंट प्रेसिडेंट है एयर इंडिया के वो है एन चंद्रशेखरन. So N Chandrasekaran is the current president of Air India. Now move on to next question. Who has received the Best Conduct of Business Regulator Award? So Best Conduct of Business Regulator Award. This is very important question. ये जो है किसको दिया गया है? NHPC, SEBI that is SEBI, CDOT या NIMHANS and the correct answer is SEBI. So the Best Conduct of Business Regulator in the Asia Pacific region has been awarded by the Asian Banker and this award is given to SEBI at the ceremony held in Hong Kong. तो ये जो है हांगकांग में हुआ था ये सेरेमनी और वहीं जो है ये SEBI को ये अवार्ड दिया गया that is Best Conduct of Business Regulator. सेबी की बात करें तो सेबी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी दैट वाज फाउंडेड इन 1988 में ये फॉर्म हुआ था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला था, जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था. दैट वाज प्रोवाइडेड इन 1992. इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई एंड द करंट प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेबी. बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सेबी? दैट इज माधवी पुरी बुच. माधवी पुरी बुच इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द सेबी. Now move on to next question. Who has won the Norway Chess 2024 tournament?
सो नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? पी श्याम निखिल, डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, विदित गुजराती, एंड द करेक्ट आंसर इज मैग्नस कार्लसन. सो नॉर्वे मैग्नस कार्लसन हैज वॉन द नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट. ये नॉर्वे से बिलोंग भी करते हैं. मैग्नस कार्लसन जो है वर्ल्ड के जो है बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, एंड ही हैज वॉन द नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट. ही हैज डिफीटेड फैबियानो कैरुआना, और ये जो है से मेंस कैटेगरी में इन्होंने जीता है. ही वॉन इन द मेंस कैटेगरी. और वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो वो जीती है जू वेनजून. शी इज फ्रॉम चाइना. ये चाइना से बिलोंग करती है जू वेनजून. एंड अभी जो रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था, दैट इज इंडियाज 85th ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? पी श्याम निखिल बिकेम द इंडियाज 85th ग्रैंड मास्टर. हु वाज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? दैट वाज विश्वनाथ आनंद वाज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. और ये वही पर्सन है जिनको जो है सबसे पहले जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है दिया गया था. दैट वाज अर्लियर नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. सो FIDE जो है इंटरनेशनल चेस बॉडी है जो चेस को रेगुलेट करती है. इंटरनेशनल चेस फेडरेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1924 एंड द प्रेसिडेंट इज अराकाडी जोकोविच. हेडक्वार्टर का है दैट इज लुजाने, स्विट्जरलैंड में जो है आपको FIDE का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, जो कि इंटरनेशनल चेस बॉडी है जो कि चेस के टूर्नामेंट वगैरह वो जो है रेगुलेट करती है. Now move on to next question. Who has become the new chief of India? This is very important question. अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है. That is who has become the new chief of Indian Army? उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान, दिनेश कुमार त्रिपाठी, विवेक राम चौधरी. And the correct answer is उपेंद्र द्विवेदी. So the government has appointed Lieutenant General उपेंद्र द्विवेदी as the new chief of Army Staff. इससे पहले जो चीफ कौन थे? That is मनोज पांडे. मनोज पांडे रिटायर कर जाएंगे अभी 31 जून को, और उनके बाद जो है ये चीफ बन गया दैट इज उपेंद्र द्विवेदी. अभी हमारे जो है नए जो नेवी चीफ भी अपॉइंट हुआ है, हु बिकेम द नेवी चीफ? दैट इज दिनेश कुमार त्रिपाठी. और अभी हमारे जो एयरफोर्स के चीफ कौन है? दैट इज विवेक राम चौधरी इज द करंट चीफ ऑफ एयरफोर्स. सो आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज ऑन 15th जनवरी वी सेलिब्रेट आर्मी डे. तो अभी कौन बन गया इसके चीफ? दैट इज उपेंद्र द्विवेदी इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी करंट सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज अनिल चौहान. अब पहले सीडीएस कौन थे? दैट वाज बिपिन रावत हु वाज डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश. उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उन्हीं में उनकी डेथ हो गई थी. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which year has been declared as the International Year of Quantum and Technology by the United Nations? This is an important question. So United Nations ने किस ईयर को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया? क्वांटम टेक्नोलॉजी इज लाइक नैनो टेक्निक यूजेस वेरी नैनो मटेरियल फॉर द टेक्नोलॉजी. बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने. अर्लियर हमने देखा था 2023 को किया था यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. दैट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया. तो विच ईयर जो है किस ईयर को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है? 2022, 24, 23, 25 एंड द करेक्ट आंसर इज 2025. So United Nations has declared 2025 as the International Year of Quantum Science and Technology to increase public awareness and support for quantum science. And it was proposed by which country? That is Ghana. Ghana has proposed. This is the African country और उसने propose किया था. Now move on to next question. Who has been appointed as the Director General of FICCI? This is an important question. ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में जो कहते हैं ना कि क्रीम क्वेश्चन, दैट इज अ गोल्डन क्वेश्चन जो कहते हैं, वही क्वेश्चन है. सारे क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे आप एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जहां भी ये जीके पार्ट है वहां पे आपको ये सारे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा. सो आप लगातार इसको देखते रहिए, जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी किया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए. तो who has been appointed as the Director General of FICCI? ज्योति विज, प्रियंका किहोली, सुधा शिव कुमार, सिंधु गणपति. And the correct answer is ज्योति विज. So the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, that is FICCI, has announced the appointment of ज्योति विज as its Director General. तो ये बन गई है डीजी, बन गई है किसकी? FICCI की. FICCI की अगर बात करते हैं, that is the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, और ये कब फॉर्म हुआ था? That was formed in 1927 and its headquarters is in New Delhi. And the current chairman कौन है? That is Dr. Anish Shah is the current chairman. She is the DG, that is Director General, but the chairman is Anish Shah of FICCI. Now move on to next question. Where has Exim Bank of India opened its representative office? What is Exim Bank? That is एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहां खोला है, कहां ओपन किया है आउट ऑफ इंडिया? नैरोबी केन्या, कैंडी श्रीलंका, अबू धाबी यूएई, त्रिकोणमली श्रीलंका. एंड द करेक्ट आंसर इज नैरोबी केन्या.
So the Export-Import Bank of India has recently inaugurated the East African Representative Office in Nairobi, that is Kenya. Nairobi जो है कैपिटल है केनिया का, और वहां जो है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है इन्होंने ओपन किया है. Export-Import Bank of India, that is Exim Bank, founded in 1982 and its headquarters is in Mumbai. ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंडिया का रेगुलेट करता है, कितना एक्सपोर्ट हुआ, इंडिया का कितना ट्रेड बैलेंस है, ये सारी चीजें जो है ये देखता है एक्सिम बैंक. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया एंड विच कंट्री विल जॉइंटली लॉन्च कृष्णा मिशन? कृष्णा मिशन कौन से कंट्री के साथ इंडिया मिलकर लॉन्च करने जा रहा है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया. एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांस. So India and France are working together on the third joint satellite mission, that is Trishna. और Trishna का full form क्या है? That is Thermal Infrared Imaging Satellite for High Resolution Natural Resource Assessment. So this is the full form of Trishna. और ये जो है इंडिया स्पेस कंपनी इसरो एंड फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, that is CNES, will launch the Trishna mission. इसका पर्पस क्या है? To monitor the temperature of the Earth. जो है ये मॉनिटर करेगा कि किस तरह का टेम्परेचर अर्थ जो है हर टाइम पे जो है कैसे कैसे टेम्परेचर देता है अर्थ. सो दैट इज द मिशन बाय इंडिया एंड फ्रांस एजेंसी, स्पेस एजेंसी, दैट इज CNES, लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस. तो याद रखेंगे अर्लियर इंडियन इसरो जो है उन्होंने लॉन्च किया था चंद्रयान 3 and India became the fourth country to do so and first country to launch it on the south pole of the moon. इसरो की बात करते हैं, that was established in 1969 and its headquarters is in Bengaluru. And the current chairman of ISRO is S. Somnath and the first chairman was Vikram Sarabhai was the first chairman of ISRO. Now over to next question. India's first astronomy tourism campaign Nakshatra Sabha has been launched in which state? तो साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, तो स्पेस से लेकर या फिर कुछ इस तरह का जो है रिसर्च वगैरह हो, तो वहां से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में अपॉइंटमेंट से आता है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा. तो इंडिया's first astronomy tourism campaign, that is Nakshatra Sabha, has been launched in which state? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड. And the correct answer is Uttarakhand. So in order to promote tourism in the state, Uttarakhand government has launched India's first astro tourism campaign named नक्षत्र सभा इन मसूरी इज हिल स्टेशन. वहां जो है ये नक्षत्र सभा लॉन्च किया गया है. इसमें क्या होगा? अंडर दिस कैंपेन एक्टिविटीज लाइक स्ट्रेट स्टार साइटिंग, स्पेशियल सोलर ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोफोटोग्राफी कंपटीशन, ये सारी चीजें आपको वहां पे ऑब्जर्व करने का जो है मौका मिलेगा. वहां पे आप देखोगे, रियलिटी फील करोगे, स्पेस साइंस का, कॉस्मोलॉजी का जो है आपको रियल फील आएगा वहां पर. उत्तराखंड जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The 50th G7 Summit 2024 has begun in which country? तो ये जो है अभी G7 समिट हुआ था, ये कहाँ हुआ है? इंडिया को भी इनवाइट किया गया था. अभी कहाँ जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था? इटली, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, रशिया. एंड द करेक्ट आंसर इज इटली. So the 50th G7 Summit is held from 13 to 15 June 2024. India joined summit as a guest country. और G7 की बात करें तो G7 was founded in 1975. इसके टोटल मेंबर जो है मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द G7. टोटल जो है मेंबर है वो है 7. दैट इज जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएस, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड. ये सारे जो है आपको यहाँ के मेंबर हो जाएंगे, दैट इज द G7 के मेंबर हो जाएंगे. दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 90. अर्लियर रशिया वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द G7 एंड इट वाज नोन एज G8. बट इन 2014 रशिया वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द G8 and it become because Russia attacked on the southernmost part of Ukraine, that is Crimea पे अटैक किया था. इस वजह से रशिया को हटा दिया गया था G8 से. Now G7 जो है अभी इटली में हुआ है. ये आपको समिट 50th समिट, ये 50th समिट है G7 का. एंड इटली के जो है प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? जॉर्जियो मेलोनी. Now move on to next question. What is India's rank in the Global Gender Gap Index 2024? This is very very important question. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. That is Global Gender Gap रिपोर्ट में इंडिया का कितना रैंक है? 140, 142, 139, 129. And the correct answer is 129. So India has been ranked 129th as per the Global Gender Gap Index released by World Economic Forum. तो ये भी आपको याद रखना है, ये रिलीज कौन करता है? That is World Economic Forum and the rank of India is 129. नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? नंबर 1 पोजीशन पे है आइसलैंड. आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा. और ये मोस्टली वर्क करता है टू ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो सके, उस डायरेक्शन में ये वर्क करता है. सो दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which country will host the Men's Junior Hockey World Cup in 2025? So Men's Junior Hockey World Cup 2025 में कौन जो है होस्ट करेंगे? ब्राजील, चाइना, डेनमार्क, इंडिया, and the correct answer is India. So India to host Men's Junior Hockey World Cup next in 2025. The Junior Hockey World Cup was played in Kuala Lumpur in 2023 में हुआ था, जिसको जर्मनी ने जीत लिया था, और 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था. That was conducted in India, that is in Odisha, Bhubaneswar, Kalinga Stadium, and it is 2-1 by Germany by defeating Belgium. जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर वो वर्ल्ड कप भी जीता था, हॉकी का वर्ल्ड कप जो मेन वर्ल्ड कप होता है. यहाँ पे हॉकी का जो है FIH है, that is International Hockey Federation, and formation it was formed in 1924. Headquarter is in Lausanne, Switzerland. और अभी जो चेयरमैन है वो है तैयब इकराम. हॉकी इंडिया के चेयरमैन कौन है? दिलीप टर्की. अभी किसी एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया था, दिलीप टर्की इज द चेयरमैन ऑफ हॉकी इंडिया. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been awarded the Risk Manager of the Year Award 2024 by London Central Banking Publication? So Risk Manager of the Year Award 2024 किसको दिया गया है इस बार? लंदन सेंट्रल बैंक ने ये दिया है. SEBI, RBI, SBI, HDFC, and the correct answer is RBI. So the Reserve Bank of India has been awarded the Risk Manager of the Year Award 2024 by London-based Central Banking Publication. और ये क्यों दिया गया है? Has received this award for improving its risk culture and awareness. RBI was established in 1935, 1st April 1935, and the first governor of RBI was Osborne Smith, and the first Indian governor was C.D. Deshmukh. RBI was nationalized in 1949. The current headquarters of RBI is in Mumbai. Earlier it was in Calcutta. Now move on to next question. That is the last question of this session. This is also very important question. According to SIPRI report, what has been the number of nuclear weapons in India? तो इंडिया के पास कितना न्यूक्लियर वेपन है अभी सिप्री के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली? 140, 172, 192, 206, and the correct answer is 172. So according to the report of Sweden's think tank SIPRI, the number of India's nuclear warhead has increased to 172 this year. और जो है इंडिया के पास इतना, सबसे ज्यादा किसके पास है? दैट इज रशिया. सबसे ज्यादा जो है न्यूक्लियर वेपन वो किसके पास है? दैट इज रशिया. ये जो सिप्री है इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये एक जो है नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है और ये रिपोर्ट पब्लिश करती है इस तरह के आर्म्स एम्युनिशन डिफेंस को लेकर. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966. हेडक्वार्टर इज इन सोलना, स्वीडन. और अभी भी फायर पावर रिपोर्ट भी इसने पब्लिश किया था. फायर पावर, सबसे ज्यादा फायर पावर किसके पास है? सो दैट इज इंडिया जो है वो कितने पोजीशन पे है? दैट इज एट द 4th पोजीशन. इंडिया का पोजीशन 4th है. So these are the 20 most important questions related to the business GK for the entrance MBA entrance examination from the GK and current affairs sections we have discussed, and this was the part 4 of the session. So with that we will conclude the session. Before that, this is the classroom program, self study program. आप अपने स्टडी को ऑर्गेनाइज वे पे अगर करना चाहते हो विद जो है आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो एक जगह पे मिल जाए और बहुत अच्छे से आपको जो है सिस्टमेटिक वे से आप करना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन अवर क्लासरूम कोचिंग. दैट इज वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी. इफ यू आर रिसाइडिंग इन मुंबई, महाराष्ट्र में हो तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग. अदरवाइज यू कैन पैन इंडिया लेवल पे आप ऑनलाइन भी ये कोचिंग अवेल कर सकते हो. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड द काउंसलर विल गाइड यू थ्रू. हियर यू विल गेट द वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, बुक, सेक्शनल कोड, जीटी, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन. सारी चीजें आपको जो है स्टडी मटेरियल, रेगुलर अपडेट, सारी चीजें 1-to-1 डाउट जो है क्लियर, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी यहाँ पर. और आपको इंटरव्यू तक के सारी चीजें यहाँ पर आपको कराया जाएगा. सो यू विल गेट द ईच एंड एवरीथिंग इन दिस classroom coaching program. So with that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next session. Till then, goodbye.